This is the main temple of Lord Jagannatha, the 12th century edifice. The foremost in the background is the main temple, which houses the Sanctum Sanctorum, and there stands the bezold throne where the lords are seated all through the year, except the period for 1 month when he comes out for the Snan Yatra or the wedding festival, till the time he returns to the main temple, the event that is called Nirth. इनकी वेशभूषा, इनके जेवर, इनकी सजावट और उसके बीच में ये आगे बढ़ते हुए छतरी से हवा करते हुए आप सोचते होंगे कि ये कर क्या रहे हैं। ये सब महाप्रभु की सेवा में है। ये देखिए तीनों रथ आतुर हो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने महाप्रभु का, और मंदिर के अंदर गुप्त नीतियाँ चल रही हैं। मंदिर के अंदर की नीतियों को तो दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बाहर जब वो आते हैं तो उसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पिछले कई वर्षों से हमारे सभी भक्तगणों के लिए कर रहा है। विचित्र विस्मय इस अनबुझ रहस्यों से परिपूर्ण है हमारे महाप्रभु। युगों युगों से ना जाने कितने ही साधु, धर्म गुरु, सन्यासियों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में और कितनी तकलीफ़ें उठाकर श्री क्षेत्र पधारते रहे हैं। श्री क्षेत्र में अपना कार्यक्रम चल रहा है, सभी अधीर होकर बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि रथ यात्रा कब आरंभ होगी। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये एक विधि विधान के अनुसार होती है, सब चीज़ें एक नियम के अनुसार होती हैं। सभी मंदिर के जो दैतापति हैं और अंदर में जो पूजा पाठ हो रहा है उसके ख़त्म होने के बाद ही ये रथ यात्रा का आरंभ होगा। रथ की सबसे पहले प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद उसमें Lords alight the 22 steps. 22 steps, it has got a greater significance for the Vaishnavas because it means 22 levels of consciousness. Once somebody, a devotee or a believer goes through 22 levels of consciousness, one can feel or get to feel the divinity or the presence, because this is called the consciousness. I was talking about the movement in Pahandi, to the front way or to the back way. This proves one thing, that Brahma is the only Satya. And what is Brahma? Brahma is the consciousness. That is the truth. Now, when there was no religion in the world except the religion of nature, and which is no different from Hinduism, because nobody knows the history of Hinduism. Because a person is called a Hindu. Whoever comes to the temple can be called a Hindu. Doesn't come to the temple is a Hindu. Believes in the rituals is a Hindu. Not believes in the rituals is also a Hindu, because it is basically the worship of nature. महाप्रभु श्री जगन्नाथ के अग्रज श्री बलभद्र जी महाराज अभी रथारूढ़ हो रहे हैं। प्रभु को बड़े आदर के साथ लिया जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ माँ सुभद्र के भी पहुँच रही हैं। मंगले मंगलाधारे मंगल्ये मंगलपदे मंगलार्थम मंगले से मंगलम देहि में भवे। समस्त संसार को मंगल प्रदान करने वाली माँ सुभद्र के पहुँच रही हैं। कहा गया महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रासादंते सहज बलभद्रेण बलीना सुभद्रा मध्य देवी परत परा भगवती या प्रकृति रूपिणी। ये प्रकृति रूपिणी है। और क्या कहा गया, न निर्लिप्ता गुप्त देहात जगत जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रा देवी आनंद कंदा कनक तनुधरा सर्व सौभाग्य रूपा। This is the beautiful moment that the devotees and the believers, they get to experience when the Lord has alighted down the 22 steps, alighted through 22 levels of understanding to reach the divinity. There is little elsewhere to compare with the splendor and the popularity that makes it eternally blissful to experience this divinity, to understand the religious festival. And this is the acrobat with the Chakrabanati. It is a piece of instrument. It is tethered with a small round-shaped figures, and there are 5 round figures are there, and it is moved in such a way that it always gives an impression that that the acrobat is moving a wheel.
if we look at the history of this Chakravarnati, भक्ताधीनः महाप्रभुः भक्तानां प्रीत्या भक्तानां भक्त्या भक्तानां सेवया सह सन्तुष्टो भवति तस्य उपरि पुष्प वितरणं क्रियते भक्ति समर्पणं क्रियते खाकर सिंह द्वार के सामने खड़ा किया जाता है। इसके बाद माँ देवी सुभद्रा का जैसा कि हम देख रहे हैं और उसके बाद बड़े भाई श्री बलभद्र ठाकुर जी का रथ लाया जाता है। यहाँ पर रथ प्रतिष्ठा की जाती है। यदि किसी तरह से किसी कारणवश कभी कभी होता है, किसी विधि विधान में नीति में देर हो जाती है, तो रात को ये कार्य नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद कार्य नहीं होता है, अगले दिन भोर में ये कार्य किया जाता है। Complete community. So this is how it happens, and for 1 month completely, a day before the bathing festival, when they enter to the sanctum sanctorum to put the makeshift ladder, and on the next day they carry the lords कथ्यते प्रथमः सेवकः कथ्यते एवं च सः अद्य भोजनेन विना तत्र उपवासव्रतम् आचरति एवं तत्र शेरापहरानीतिं सम्पाद्य अनन्तरं हविष्यान्न भोजनं period when Gajapati Maharaja gives the permission. So after that he can get into the other services, offering himself to the Lord. And as we have been seeing and watching for the last many years, even during the except the period of a high pandemic, that year Gajapati Maharaja himself was not present there to offer his personal rituals. That time the representative Mudiratha had come. As we now see, Gajapati Maharaja is offering the incensed camphor, burning the camphor there just before the Lord in the sanctum sanctorum. He has alighted onto the pedestal there, and the ruling chiefs of the area, because in other areas of Odisha which were controlled by the Rajas and Maharajas, the pulling of the chariots used to be held on the next day when Puri was having the pulling of the chariot, because the Rajas and Maharajas, they were coming here and they were going back to their individual territories, and the next day they were holding the Gajapati scene on the chariots. Anyway, he is there, and let Lord Almighty, let Lord Jagannatha give him lot of strength. चिंता भी कि आखिरकार भीतर क्या हो रहा है, विश्वकर्मा जीवित है भी या नहीं, मूर्तियों का निर्माण हो भी रहा है या नहीं, और अपने इसी अधबनी मूर्तियां गिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर से गुंडीचा के महल से हटकर जैसे ही रत्नवेदी पर सवार हुए तो गुंडीचा फिर विचार से भर गई थी, दुखी हो गई थी कि मुझे छोड़कर चतुर्धा मूर्ति चली जा रही हैं। तब महाप्रभु ने ये वरदान दिया था या प्रतिश्रुति दी थी कि वर्ष में एक बार वो निश्चित रूप से वहां जाएंगे। दलन दर्पदलन पूरा जाने की तैयारी में दाहू पूरे अपने जिसको कहते हैं कि एक्शन मोड में आ चुके हैं, और ये घोड़े जैसे लगता है अभी जीवंत हो उठेंगे। कलाकारों ने, चित्रकारों ने, शिल्पीकारों ने कितनी सुंदरता से, कितनी मेहनत से, सालों मेहनत करके इन शिल्पकारों ने इनको गढ़ा है, और ये वंशानुक्रम सेवा है। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने मन से ये किया है, जैसा जैसा शिल्पकार शिल्पी में लिखा है उसी तरह से बढ़ता है। ये देखिए माँ सुभद्रा का रथ अब आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, घंट वर्धन होता हुआ, हुड़ो हुड़ की ध्वनि, मंगल ध्वनि कानों में गूंजती हुई, जय माँ जय माँ जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ शक्ति रूपिणी, जय माँ सुभद्रा। और ये 2 कदम आगे बढ़ते ही जैसे ही भक्तों में पूरा जोश आता है, ये फिर रुक जाता है। यही तो प्रभु की लीला है, वो कैसे इतनी जल्दी इतने स्वयं को अपने जो गगनचुंबी मंदिर को छोड़ के आए हैं और आड़प मंदिर की तरफ जा रहे हैं, महावेदी की तरफ जा रहे हैं अपने जन्म। And for this only, the travelers, the non-believers, after hearing everything, they have come here. They have come here to understand and to get a feeling of this. This is how it happens. This is how it happens, and travelers, non-believers, tourists, they have come from 13th and 14th century. The oldest record of the European
tourist in the holy city of Puri, or holy town of Puri I can say, was in 14th century. Mandeville. I was talking about the reports of Mandeville or the travels of Mandeville. So all these things are written there. And when an Indian, a person of Indian origin wrote about his Indian experiences in India, because when he went to, because he was a barber with the soldiers of East India Company, his name was कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में काबिल रहता है। गुंबज की आकृति के ऊपर की ओर मेघ जैसी नुकीली होने के कारण अति वेग से आने वाली हवा भी सहजता से गति पार कर जाती है और एक विशेष प्रकार का गुंबज निर्माण शैली, एक बूंद पानी भी यहाँ पे वर्षा होती है। मजाल है कि एक बूंद पानी भी हमारे ठाकुर जी के ऊपर गिर जाए तो इससे हमें इस रथों के वर्षा निरोधक शक्ति का भी परिचय मिलता है। यानी कि ये रेन प्रूफ है, ये एयर कंडीशन देते हैं, शीत तापमात्रा देते हैं। रथ के ऊपरी भाग को चंदवा से अच्छी तरह से आवृत किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं कि देखिए इनके ऊपर कितनी भारी संख्या पे रथ पे सभी वजन के लोग, वह इतना संपूर्ण कि उसमें से यदि पूरा पुण्य घटा दो तो भी अक्षय पुण्य शेष रह जाएगा सारा का सारा। वो पुण्य ब्रह्म, उनकी लीला भी पुण्य है। और चल रहे हैं, ये रथ चल रहे हैं, कहा घर घर निनाद कर चलता देखो नंदिघो शक्कर, सम्य मैत्र की गाथा सुनाता रुक जजू रुक रुक क्षण क्षण पथ पर। ये क्षण क्षण पथ पर निश्चित रूप से रुक जाते हैं क्योंकि भक्तों को देखना पड़ेगा और भक्त उन्हें देखेंगे।